مرکزی رویت حلال کمیٹی کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ محمد ابراہیم قادری، مفتی محمد عارف سعیدی، مولانا حافظ عبید اللہ پنور، مولانا محمد ظفر سعیدی، مولانا حافظ عبد المالک بروہی، مولانا محبوب علی صحتو، علامہ پیر سید شاہد علی شاہ جیلانی، آغا گوہر علی، جناب غلام مرتضیٰ، ڈپٹی چیف منیجر اسپیس اینڈ سائنس سپارکو، اور لیفٹیننٹ کمانڈر پاکستان نیوی جناب منظور احمد۔ زونل رویت حلال کمیٹی کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا حافظ محمد سلفی، مولانا قاری نذیر احمد نعیمی، مولانا قاری محمد اقبال، مولانا صابر نورانی، علامہ سید علی کرار نقوی۔ کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر شاہد قریشی اور محکمہ موسمیات کے چیف میٹرالوجسٹ جناب سردار سرفراز نے فنی معاونت کی اور اجلاس کے لیے سہولت فراہم کی، اور حافظ عبد القدوس ڈپٹی ڈائریکٹر وزارت مذہبی امور نے رابطہ کار اور اہتمام کے فرائض انجام دیے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں زونل رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز پر منعقد ہوئے۔ ہماری مرکزی رویت حلال کمیٹی کے ممبران مولانا عبد الخبیر آزاد، مولانا قاری محمد حنیف جالندری، مولانا یاسین ظفر اور مولانا عبدالعزیز اشر نے فون پر مجھے کہا کہ ہم اجلاس کے فیصلے کی تائید کریں گے۔ پاکستان میں بیشتر مقامات پر مطلع صاف تھا۔ حافظ محمد یوسف جو چمن میں رویت حلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے 15 افراد نے چاند دیکھا۔ پسنی میں مولانا فقیر محمد نے بتایا کہ ان کے ساتھ جم غفیر نے چاند دیکھا، اور وہ خود بھی اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ متفرق مقامات سے شہادات موصول ہوئیں۔ ہمیں علامہ ساجد نقوی نے اطلاع دی کہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے تھے ان مقامات پر جہاں امکان رویت ظاہر کیا گیا تھا، ان کے لوگوں نے عدم رویت کی رپورٹ دی، لیکن یہاں شہادات چونکہ کافی تعداد میں آئیں، جو اکا دکا شہادتیں آئیں ان کا ہم نے اعتبار نہیں کیا۔ حالانکہ ایک جنرل افتخار صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھا، راولپنڈی میں کرک سے بھی آئیں اور مقامات سے بھی آئیں، لیکن جہاں کسی درجے میں امکان رویت تھا وہاں سے جو شہادتیں آئیں ان کو جج کرنے میں کافی وقت لگا، اور پھر پوری کمیٹی نے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کیا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ آج چاند نظر آ گیا ہے، اور عید الفطر کل 24 مئی 2020 کو ہوگی۔ ہمارے ماہرین میں سے ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب بھی تھے، اور بعض اوقات ماہرین کا بھی آپس میں اتفاق رائے ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ یہ جو چاند تھا یہ بہت حساس تھا، کیونکہ
जनूबी इलाक़ों में जहाँ इम्कान रोयत किसी दर्जे में था तो उस पर तवज्जो दी गई, काफ़ी वक्त इंतज़ार किया गया और जब हमारे उलमा को शरह सदर हो गया तो उसके बाद हमने फ़ैसले का ऐलान किया और मैं मरकज़ी रिवायत कमेटी पाकिस्तान की जानिब से तमाम अहले पाकिस्तान को, पूरी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ कल जो अलमनाक हादसा हुआ पाकिस्तान के PIA के जहाज़ का, वो पूरी कौम के लिए एक अलमिया, एक सानहा है। उसमें जो साहिबान ईमान शहीद हुए, हम उनके लिए मकाम शहादत और बुलंदी दरजात की दुआ करते हैं और जो हमारे गैर मुस्लिम मुसाफिर थे उनके ख़ानदानों के साथ भी ताज़ियत का इजहार करते हैं। वो सब पाकिस्तानी हैं। इसी तरह से हमारा मुल्क पूरी दुनिया के साथ कोरोना वायरस के जो ख़तरात और ख़दशात हैं उसमें मुब्तला है और ये इब्तिला पूरे आलम इंसानियत के लिए है। इसके लिए भी पूरी कौम को दुआएं करनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, बिलाद इस्लामी और पूरे आलम इंसानियत के लिए, क्योंकि ये एक इंसानी आफत है, इब्तिला है, आलमिया है और इससे कोई भी मुल्क पूरी तरह से आज महफूज नहीं है। और हमारी मालूम तारीख़ में इब्तिलाएँ, आज़माइशें आती रहीं और कई वबाएँ भी आती रहीं, लेकिन इस तरह की वबा कि जिसने पूरे आलम को घेर लिया हो, ये शायद एक मुनफरिद नौइयत की वबा और इब्तिला है। अल्लाह तबारक व तआला इससे पूरे आलम को, उम्मत मुस्लिमा को और अहले पाकिस्तान को निजात अता फरमाए। साहब ये बताइए कि मौके पर जो कोरोना की वबा है और इस वबा के तनाजुर में जो बगलगीर होते हैं लोग, हाथ मिलाना है, इसके बारे में आप क्या? इसके बारे में मैं ये मशवरा दूंगा क्योंकि बाद शोबे ऐसे होते हैं कि जिनमें माहिरीन की राय पर हम फ़ैसला करते हैं। चूँकि माहिरीन तिब कहते हैं कि मिलने से, मुआनक़ा जो हमारी रिवायात में से है, मुसाफ़हा जो हमारे यहाँ सुन्नत है, ये तमाम हमारे मसनून चीज़ें हैं, मुस्तहब्बात हैं, आदाब में से हैं, रिवायात व अक़दार में से हैं। लेकिन वो बताते हैं कि इसमें मरज़ के मुंतकिल होने के ख़दशात हैं। तो सलाम सुन्नत है। ईद की मुबारकबाद देना ये आसार सहाबा से और ये उम्मत से साबित है कि तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहें और एक दूसरे को मुबारकबाद दें। तो बेहतर ये है कि इख्तियात पर अमल करें। ये बहरहाल क़तई चीज़ नहीं है, मौहूम चीज़ है, ज़न्नी चीज़ है, लेकिन इख्तियात पर अमल करने में शरन कोई ममानात नहीं है। इसलिए कल ईद की नमाज जब आप पढ़ेंगे तो सबसे कहूँगा एक दूसरे को ज़बानी मुबारकबाद दें और मुबारकबाद देकर एक दूसरे से रुखसत हो जाएं। और ये जो ईद का कर्ज़ रह जाएगा मुआनक़े का, मुसाफ़े का, ये बाद में अदा कर दीजिएगा। अल्लाह करे कि ये ख़तरा, ये आफत, ये मुसीबत टल जाए। अच्छा मोदी साहब, आपके ऊपर हुकूमती प्रेशर भी था आज के फैसले के लिए, कहा जा रहा है चीन में गोली हो रही, ये कुछ हुकूमती प्रेशर भी था? प्रेशर पहली बात तो ये है, कि फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं है। हम शरीयत के पाबंद हैं। फवाद चौधरी ने
पिछले महीने में मैं बताया था, हमने शरीयत के मुताबिक फ़ैसला किया। फवाद चौधरी को मुदाखलत फ़िद्दीन नहीं करनी चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि उनको मुदाखलत फ़िद्दीन से रोकें। और उन्होंने तो कहा था कि 2022 में चाँद पर हम अपना बंदा भेजेंगे, तो उस काम में लग जाएं। और अभी 1 महीने पहले कहा था कि हम वेंटिलेटर आलमी मेयार पर बनाएंगे और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो काम करके दिखा दें। लेकिन उनकी कुछ महरूमियाँ और मायूसियाँ हैं, तो उसके लिए दीन को निशाना न बनाएं। हम मुदाखलत फिद दीन पर फवाद चौधरी की शदीद तरीन मजम्मत करते हैं और हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जब वो मजहबी उमूर के वज़ीर नहीं है, पर ये ईद उनका काम है, जो रोज़े रखें, जो नमाज़ें पढ़ें, वो हलफिया कौम को बताएं कि कितनी नमाज़ें उन्होंने पढ़ी, कितने रोज़े उन्होंने रखे, उनका ईद से क्या रिश्ता बनता है। लेकिन मालूम नहीं है कि हुकूमत में क्या मसाइल हैं कि काबीना के किसी का रुख मशरिक़ को, किसी का मगरिब को, किसी का शिमाल, किसी का जनूब को, लेकिन फवाद चौधरी पर पाबंदी लगनी। शवाल का चांद नजर आ चुका है, कल ईद उल फितर होगी। आपको बताएं कि शवाल का चांद नजर आ है और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से बाकायदा तौर पर यह ऐलान भी कर दिया गया है, अहले लाहौर को चांद रात की ढेरों खुशियां मुबारक हों। ये कौन चल बसा यहाँ हर आंख अश्कबार है, कलेजा गम से फट गया ये दिल भी अब फिगार है। 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी तैयारा हादसे में शहीद हो चुके हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तस्दीक कर दी है, अंसार नकवी की अहलिया को शहादत के बारे में आगाह कर दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स प्रोग्रामिंग अंसार नकवी तैयारा हादसे में शहीद हो गए। गवर्नर सिंध ने अंसार नकवी की शहादत की तस्दीक कर दी। इमरान इस्माइल ने अंसार नकवी की अहलिया को शहादत के बारे में आगाह किया। अंसार नकवी के साहबजादे शाहजेब अंसार तमाम अहबाब और दोस्तों से दुआओं की दरख्वास्त करते हुए कहते हैं कि उनके बाबा अब दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ये नाकाबिले तलाफी नुकसान है जिसका आजाला मुमकिन ही नहीं। खानदान के लिए बड़ा सानिहा और दुख का लम्हा है। जबकि अंसार नकवी शहीद के भाई शफात नकवी कहते हैं कि अंसार नकवी न सिर्फ अहले खाना बल्कि अहले मोहल्ला से भी निहायत शफकत से पेश आते थे। अंसार भाई बहुत एक नफीस इंसान थे, बहन भाइयों से, माँ बाप से, यारों के यार, दोस्तों के दोस्त, महल्ले में गरीबों की मदद करना, सबका ख्याल रखना, माँ की बेइंतहा खिदमत की। अभी 26 महीने हुए हैं वालदा के इंतकाल को। अंसार अली नकवी की शहादत पर सिटी न्यूज़ फैमिली का दिल गिरफ्ता है, जबकि सीनियर सहाफ़ी और अंसार नकवी के दोस्त अहबाब भी गम में मुब्तला है। जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला उनकी फैमिली के ऊपर आसानियां पैदा करे, बच्चों के लिए आसानी पैदा करे। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला उनके लिए मंजिल इंसान करे, उनके बच्चों को सब्र दे, प्यार उनका सब कुछ। बेटा भी लाहौर आता, बुलाता, कैसे बैठना सिलसिला है, मैंने उनमें कोई बुराई नहीं देखी। अभी हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम होता था तो अंसार साहब जो है वो हमेशा सबसे पहले करते थे, भाई हम आपके साथ हैं। तमाम चैनल जितने भी साथी हैं उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ, सबके साथ ज़्यादा ताज़ीर करता हूँ। लेकिन ये सिर्फ ये 24 चैनल का या उनकी फैमिली का नुकसान नहीं है, पूरी पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है उसका नुकसान है। लेकिन अंसार से क्योंकि एक बड़ा पुराना ताल्लुक था, मैंने उसके सहाफ़त में आके सहाफ़त में परवान चढ़ते और अच्छी पोजीशन पर जाते हुए देखा। और इस पूरे अरसे में उसने किसी भी एक स्टेज पर मैंने उसको अपने प्रोफेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नहीं देखा। एक तवील था और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी थे। हमने साथ ही ट्रेनिंग की थी और हमने साथ ही जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज्वाइन किया। तो अच्छे दिन वो थे कि जब हम साथ मिलकर काम करते थे कराची में, और हमने क्या नहीं किया। नवाज शरीफ की आमद, बेनज़ीर भुट्टो की आमद, पहला शॉट चाहिए जहाज़ का, अंसार नकवी उसके ऊपर लग गए। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस की तहरीक, पूरी तहरीक लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती,
वो बहुत मुश्किल था, बहुत डिफ़िकल्ट था। इसमें अंसार का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार था। टीम तो वही थी हमारी, अज़हर अब्बास साहब की, मैं, उस्मान साहब भी थे, खुर्रम कलीम भी थे और अंसार उसका एक हिस्सा थे। अंसार नकवी के अजीज व अकारब का कहना है कि अंसार नकवी शहीद हमेशा दोस्तों की तरह पेश आते थे। वो अपना काम इंतहाई ईमानदारी से करते थे। कराची में तबाह होने वाले PIA के तैयारे के मुसाफिरों में 24 न्यूज़ के डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी मौजूद थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सीट कन्फर्म न होने के बायस उन्होंने बजरिया सड़क जाने का फैसला किया था, मगर अचानक सीट कन्फर्म हो गई। दुनिया का बाजार एक ऐसी जगह है जहां खरीदार आते हैं और चले जाते हैं, मगर रौनक बाजार कायम रहती है। मगर कुछ खरीदार ऐसे भी होते हैं जो इस अदा से बाजार से गुजरते हैं कि लगता है कि रौनक बाजार इन्हीं के दम से थी। मीडिया इंडस्ट्री में अंसार नकवी के साथ काम कर चुके लोगों का तासुर ऐसा ही है। अपने खानदान के लोगों से ज्यादा हमारे आपस में रहा, और वो बंदा ऐसा बंदा कि जो मतलब हर वक्त आपके साथ बातचीत और खूबसूरती के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, ऐसे बंदे के साथ तो वैसे बंदा का दिल चाहता रहता है कि बंदा गुफ्तगू करे। तो मतलब वो हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये इज नो मोर विद अस। मैंने तो हमेशा, मेरे लिए उनका दर्जा जो है बड़े भाई का रहा है, तो हमेशा बड़े भाई की तरह हमेशा गाइड करने वाले, बहुत शफीक इंसान, बेहतरीन प्रोफेशनल, बेहतरीन काम करने वाले, अपनी टीम को साथ लेके चलने वाले। अंसार साहब का यूं अचानक चले जाना बहुत बड़ा धचका बन के सामने आया, और कल से जो हम जिस खदशे के शिकार थे कि वो बुरी खबर बाकायदा सामने ना आ जाए, वो आज आ गई। ये हुक्म रब्बी है, जाहिर है इसके आगे किसी को मजाल नहीं है। अंसार नकवी 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर एंड प्रोग्रामिंग थे। अंसार नकवी नहीं रहे, मगर इनकी सरबराही में काम करने आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ सैयद अंसार नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहते हैं मरहूम की सहाफ़त में खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी इजहार अफसोस किया। कहा, दुख की घड़ी में कौम मरहूम के अहले खाना के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी की शहादत पर दुख का इजहार। शहबाज शरीफ का भी सीनियर सहाफ़ी सैयद अंसार अली नकवी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ सैयद अंसार नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहते हैं कि मरहूम की सकाफ़त में खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी इजहार अफसोस किया है। कहा, दुख की घड़ी में कौम मरहूम के अहले खाना के साथ खड़ी है। और तैयारा हादसे में शहीद कप्तान सज्जाद गुल की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। त्यारा हादसा पेश आया और आपको बताएं कि इसमें शहीद कप्तान सज्जाद गुल की नमाज जनाजा है जो कि इस वक्त अदा की जा रही है। बड़ी तादाद में जो उनके अहल खाना हैं, अहबाब हैं और मुख्तलिफ अहम शख्सियात हैं जो कि उनके घर में मौजूद हैं, ताज़ियत के लिए अहल खाना से पहुँच रही हैं। और इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं, ये उनके घर के बाहर के मनाजिर हैं। त्यारे हादसे में शहीद कप्तान सज्जाद गुल की नमाज जनाजा है जो कि अदा की जा रही है। बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मुसाफिर तैयारा लाहौर से कराची आ रहा था कि लैंडिंग से कुछ देर ही कबल हवाई अड्डे से मुतसिल इलाके मॉडल कॉलोनी की रिहायशी कॉलोनी में गिरकर तबाह हो गया। तैयारा गिरने से कई मकानात भी तबाह हुए हैं और इलाके में भी उस वक्त भगदड़ मच गई और इस वक्त नमाज जनाजा अदा करने की तैयारियाँ जारी हैं। त्यारा हादसे में अब तक 97 शहादतों की तस्दीक, 19 लाशें लवाहिकीन के हवाले की जा चुकी। बेशतर लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं। अंगूठों और DNA के जरिए लाशों की शनाख्त जारी है। मॉडल ज़ारा आबिद की शहादत की भी तस्दीक हो चुकी है। फ़ज़ाई मेज़बान फरीद अहमद की मैयत भी एयरपोर्ट से घर पहुँच गई है। मैयत कराची से आने वाली परवाज़ PK 8304 के जरिए एयरपोर्ट पहुँची। जज़्ज़े खाकी को कौमी परचम में लपेट कर लाया गया। कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाले फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आज़म तो दुनिया फ़ानी से चले गए मगर पीछे बहुत सी यादें छोड़ गए। इलाका मकीनों ने उस्मान आज़म को नेक सीरत करार दिया। इलाका मकीनों ने कहा कि उस्मान आज़म से ज़्यादातर मुलाकात मस्जिद में ही हुआ करती थी। कराची में जहाज गिरने के दिलखराज सानिये में को पायलट उस्मान आजम भी शहीद हुए। PIA के मुताबिक उस्मान आजम की नाश की शनाख्त नहीं हो सकी। घर वाले अभी भी आस लगाए बैठे हैं। फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम की रिहाइशगाह जोड़े पुल पर ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। उस्मान आजम के मोहल्लेदारों और दोस्तों ने कहा कि उस्मान आजम नेक सीरत तहज्जुद गुजार थे। एक रोज कबल मुलाकात हुई तो उन्होंने नमाज की ही तलकीन की। माशाल्लाह बहुत उसका इखलाक अच्छा था जी। उसने माशाल्लाह नमाज पढ़ते थे, तबलीगी जमात में भी
हिस्सा लेते थे और वो बड़े अच्छे अखलाक के मालिक थे। मुलाकात माशाल्लाह वो घर भी आ जाते थे और रास्ते में भी माशाल्लाह मस्जिद के बाहर खड़े होते थे, रोक लेते थे और घर भी चक्कर लगाते थे और बस यही तलकीन करते थे कि नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो। उस्मान आजम के दोस्त खलील का कहना था कि उनसे ज़्यादातर मुलाकात मस्जिद में ही होती थी। उस्मान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, नेक आदमी थे, किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का बुरा ना करते थे, अखलाकियात के लिहाज से बहुत अच्छे थे। अब आस पास के अल्लाह ने उनको ओहदा दिया, लेकिन वो कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि किसी किस्म का उनमें घुमंड हो। बाकी जो है फुकरा थे उनकी भी वो खिदमत करते थे, सदकात वगैरह अपने इलाके में जो है करते रहते थे। उस्मान आजम की शहादत ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया है। फर्स्ट ऑफिसर की उम्र 33 साल थी और उनके 2 भाई हैं। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन के भाई इंतकाल कर चुके हैं। बैरिस्टर एतजाज एहसन के भाई प्रोफेसर डॉक्टर एजाज एहसन कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज एहसन मारूफ सर्जन थे। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज एहसन साबिक प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज भी थे। अफसोसनाक खबर है, मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन के भाई इंतकाल कर चुके हैं। बैरिस्टर एतजाज एहसन के भाई प्रोफेसर डॉक्टर एजाज एहसन कोरोना के बायस जान की बाजी हारे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज एहसन मारूफ सर्जन थे। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज एहसन साबिक प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज भी थे। आपको बताएं कोरोना के वार जारी हैं। मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन के भाई इंतकाल कर चुके हैं। बैरिस्टर एतजाज एहसन के भाई प्रोफेसर डॉक्टर एजाज एहसन कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज एहसन मारूफ सर्जन थे और प्रोफेसर डॉक्टर एजाज एहसन साबिक प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज भी रहे हैं। बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। पंजाब में कोरोना वायरस के 275 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुसद्दिका मरीजों की तादाद 18,730 हो चुकी है। लाहौर में कोरोना वायरस के 28 नए मरीज सामने आ गए। शहर में कोरोना वायरस के 8,805 मुसद्दिका मरीज मौजूद हैं, जबकि मोदी वबा से अब तक 123 अमवात हो चुकी हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक 275 नए केसेस आम शहरियों में सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस से अब तक 324 अमवात हो चुकी हैं। सुबह भर में 1,97,225 अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अवाम से गुजारिश की है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। कोरोना वायरस की इलामात ज़ाहिर होने पर फौरन 1933 पर राब्ता किया जाए। पंजाब पुलिस में 2 दिनों में मजीद 68 कोरोना वायरस के मरीजों का इजाफा हो चुका है। लाहौर समेत पंजाब भर में मरीज मुलाजमीन की तादाद 557 हो चुकी है। लाहौर पुलिस मुतासिरा इजला में पहले नंबर पर है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली साही। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने सूबे भर में कोरोना वायरस के हवाले से ड्यूटियां देने वाले मुलाजमीन के कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने का हुक्म दिया था। अब तक करवाए गए टेस्टों में मौसूल होने वाले नताइज में मरीजों की तादाद 557 हो गई है। अब तक 140 पुलिस अफसरान और अहलकार सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 390 मुस्बत मुलाजमीन मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 15,870 से जायद पुलिस मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट अब तक मुकम्मल कर लिए गए हैं। 3,097 पुलिस अहलकारों के कोरोना टेस्ट के नताइज का इंतजार है। आईजी पंजाब का कहना है कि मुलाजमीन का बेहतरीन इलाज मुआवजा किया जा रहा है। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले मुलाजमीन को फीकस 25,000 इमदाद दे रहे हैं। कोरोना के मरीजों को घरों पर ही आइसोलेशन की इजाजत के बाद सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों का रश कम होने लगा है। शहर भर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 602 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 62 इंतहाई निगहदाश्त में हैं, जबकि 21 की हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया है। शहर के सरकारी हॉस्पिटल्स में इस वक्त कोरोना के 433 कन्फर्म मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 18 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं। हालत तशवीशनाक होने की वजह से 10 मरीजों को वेंटिलेटर के जरिए मसनूई तनफ्फुस फराहम किया जा रहा है। 19 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मजमूई तौर पर कोरोना के 169 कन्फर्म मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 44 को ICU में दाखिल किया गया है। इनमें से 11 को वेंटिलेटर्स पर रखा गया है। अभी दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं सदर बाजार कैंट में भी ईद की शॉपिंग उरूज पर है। खरीदारों का रश है, जबकि कोरोना से बचाव के SOPs नजरअंदाज कर दिए गए।
صدر کینٹ بازار میں عید شاپنگ کے لیے فیملیز کا رش رہا۔ خواتین کی بڑی تعداد نے بچوں کے ہمراہ بازار کا رخ کیا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ عید شاپنگ کے لیے نہایت کم وقت ملا، تاہم تاجر حضرات کاروبار چلنے پر خوش نظر آئے۔ نوجوان بھی صدر بازار کینٹ اور انارکلی بازار میں خریداری کرنے میں مگن رہے۔ صدر بازار کینٹ کے تاجر قائدین نے کہا کہ اس مرتبہ عید پر کاروبار کے لیے وقت کم تھا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے باعث اس عید پر روایتی جوش و خروش کم رہا۔ تاجر قائدین نے کہا کہ پنجاب اور وفاقی حکومت عید الفطر کے بعد SOPs کے تحت کاروبار کرنے کی اجازت دے تاکہ کاروبار چلنے سے ملک کی معیشت بحال ہونے میں مدد مل سکے۔ کیمرامین محمد انجم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ عید کے لیے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پردیسی کل عید اپنے آبائی علاقوں میں گزارنے کے لیے لاری اڈے پہنچ گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث پہلے بہت سے لوگ واپس جا چکے ہیں۔ بالکل، لاری اڈا سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے مزید فخر امام جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فخر امام، بتائیے گا صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، اب تو کل عید کا اعلان بھی ہو چکا ہے اور اس سے پہلے بھی جو بڑی تعداد تھی یہاں پر پردیسیوں کی جو کہ اپنے آبائی شہروں میں اور آبائی علاقوں میں جانے کے لیے بالکل یہاں پر پہنچے تھے، گاڑیوں کی تلاش کر رہے تھے، لیکن ٹرانسپورٹرز کا یہ کہنا ہے اگر ان کی بات کی جائے اور اوورآل یہاں پر رونق کی بات کی جائے تو اس دفعہ جو رونق ہے کافی زیادہ ماند ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے باعث بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی جو ہے اپنے علاقوں میں اپنے شہروں میں جا چکے تھے اور بہت کم تعداد ایسی تھی جو کہ اب یہاں سے اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ بہت کم مسافر ہیں یہاں پر اور جو بسیں بھی جا رہی ہیں وہ بھی اس طرح سے مکمل بھری ہوئی نہیں ہیں، یا پھر 3-3 4-4 گھنٹے یہاں پر انتظار کرنے کے بعد جو ہیں مسافروں کو لے کر اپنے مختلف علاقوں میں یہاں سے جا رہی ہیں۔ SOPs کے حوالے سے بات کریں تو جو یہاں پر کاؤنٹرز پر لائنیں ہمیں نظر آئیں یا بسوں میں جس طرح سے مسافروں کو بھرا گیا ہے تو اس حوالے سے کوئی خاص SOPs پر عمل درآمد کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی نظر تو نہیں آیا، البتہ حکومت کے جانب سے یہاں پر شیڈز لگا کر جو یہااں پر سٹنگ کا انتظام کیا گیا تھا مسافروں کے لیے، البتہ سماجی فاصلے کے حوالے سے SOPs ہوں یا دیگر حفاظتی اقدامات ہوں اس میں کسی بھی قسم کے جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ نظر نہیں آئے، جبکہ مسافروں کی بھی اب بہت ہی جو کم تعداد ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے اور اپنے آبائی علاقوں کو جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے فخر، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتا چلیں کہ لاری اڈوں پر اس وقت برقرار ہے، لوگ گھروں پر جانے کے لیے واپسی کے منتظر ہیں اور کل عید ہے تو عید کی مناسبت سے بھی لوگ گھروں کو جانے کے لیے بےتاب ہیں اور ان کی یہی خواہش ہے کہ وہ گھر پر جا کے اپنے بچوں کے ساتھ عید گزاریں۔ عید کے لیے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پردیسی کل عید اپنے آبائی علاقوں میں گزارنے کے لیے لاری اڈے پہنچ چکے ہیں، جبکہ فخر امام ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ SOPs کی جو خلاف ورزی ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ SOPs پر کوئی خاطر خواہ عمل درآمد نہ تو کروایا جا رہا ہے اور نہ ہی لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال لوگ گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں اور پردیسیوں کا اس وقت گھروں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ بالکل، لاری اڈا کے مناظر بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، نہ کوئی ماسک ہے، نہ کوئی گلوز اور نہ ہی SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے۔ خوبصورت نظر آنے کے لیے مرد حضرات کی کثیر تعداد سیلونز پر پہنچ رہی ہے، جہاں کورونا سے بچاؤ کے SOPs پر عمل کرتے ہوئے ان کی کٹنگ اور بناؤ سنگھار کیا جا رہا ہے۔ وقاص احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، بتائیے گا کیا جذبات دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، آج چاند رات ہے، کل ملک بھر میں عید الفطر منائی جائے گی اور آج دن بھر جس طرح سے مختلف مارکیٹوں میں لوگ شاپنگ کرتے رہے، بیوٹی پارلرز میں رش رہا، خواتین بناؤ سنگار کرتی رہی، اسی طرح سے رش دیکھا گیا جو مین سیلونز تھے، کیونکہ جہاں پہ نوجوانوں نے خاص طور پر لڑکوں نے نئے کپڑے خریدے وہیں پر وہ اپنے بال بنا کر ان کی کٹنگ کروا کر بھی خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں شادمان کے ایک سیلون پہ، ان سے ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے کس طرح سے اس بار جو روایتی رش ہوتا تھا مردوں کا سیلونز پہ آنے کا وہ کس طرح سے متاثر اور ابھی کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم بلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس طرح ڈیفینیٹلی کرونا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بدلی ہیں، جی کیسے حالات ہیں اس بار؟ پہلے تو بڑے عجیب حالات تھے، اب ماشاءاللہ بہتر ہو گیا، 2-3 دن ہو گئے ہیں ریگولر روٹین میں کام ہو رہا ہے، تو گورنمنٹ نے جیسی ہدایات دی ہوئی ہیں ان پہ عمل کیا جا رہا ہے اور کام کر رہے ہیں ہم سب۔ اچھا، ہر سال ایسے ہوتا تھا کہ عید پہ یا کسی اچھے تہوار پہ
कोई नया स्टाइल इंट्रोड्यूस होता था मार्केट में, तो इस बार भी क्या कोई नया स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ है या फिर जो पहले से चीज़ें चली आ रही थी वही लेके आगे आ रहे हैं? इस बार तो जो फेस पे है वही नया स्टाइल है, वो आप देख ही रहे होंगे, उसके अलावा कोई नहीं। उसके अलावा कोई नहीं है जी। ये जो उन्होंने नए स्टाइल की बात किया है, ये बेसिकली वो हुकूमती SOPs हैं कि उन्होंने अमल करना है हुकूमती SOPs पे, और कटिंग के दौरान जो है सो अपना जो सोशल डिस्टेंस है वो भी बरकरार रखना है, मास्क भी इस्तेमाल रखना है। इसके साथ साथ सारी मुश्किलात और मसाइब के बावजूद जो लोग यहाँ पे आते हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि ईद पर वो खूबसूरत नज़र आ सके और ईद की खुशियों को एंजॉय कर सकें। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। ईदान पहुंची लेकिन महंगाई कम ना हो सकी। ब्रायलर की ऊंची परवाज से खिरोज में मुर्गी का गोश्त 22 रुपए महंगा हो चुका है। माह रमजान में ब्रायलर की कीमत में 94 रुपए किलो तक इजाफा हुआ है, जबकि सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और इनमें भी कोई कमी ना आ सकी। बरकतों और रहमतों वाला महीना रमजानुल मुबारक इख्तिताम को जा पहुंचा, लेकिन मुर्गी, सब्जी और फलों की कीमतों में कमी की बजाय मजीद इजाफा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त एक रोज में 22 रुपए फी किलो महंगा होकर 306 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद न करवाए जाने पर शहरी हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। गरीब आदमी की खाएगा, दसो मनु, मुर्गी इन्नी को महंगी हो चुकी है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਡਰਮ ਸਟਿਕ 320 40, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 160 रुपए मिलती है। सर ब्रायलर तो इसीलिए बढ़ा है कि ईद आ गई है और इस चीज़ के ऊपर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। DC साहब ये कह रहे हैं 260 में सेल करें, 260 में सेल कैसे हो सकता है? मुर्गी के गोश्त की कीमत के हवाले से पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन नॉर्थ जोन के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद फरगाम का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस फार्मर्स ने चूजा नहीं डाला, जिसके बायस तलब के मुताबिक शहर में ब्रायलर नहीं आ रहा और कीमत में इजाफा हुआ है। ताहम ये सिलसिला ईद उल अजहा तक जारी रहेगा। ईद की आमद है, लेकिन हुकूमत शहरियों को रिलीफ न दे सकी। शहरी हुकूमत की कारकर्दगी पर शिकवे शिकायतें करते नजर आते हैं। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ हसन अली, सिटी 40। सानेहा PIA त्यारा हादसा फिजाई मेजबान फरीद अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आपको बताएं सानेहा PIA त्यारा हादसा फिजाई मेजबान फरीद अहमद की नमाज जनाजा अदा की गई। शहीद की नमाज जनाजा नज़ीर गार्डन चल्लो में अदा की गई। नमाज जनाजा में खानदान अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहूम का जज़्ज़े खाक की तदफीन के लिए भट्टा चौक बाग रहमत रवाना हो चुका है। शहीद फरीद अहमद चौधरी PIA के फ्लाइट इंचार्ज थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने चांद रात और ईद पर शहरियों से समाजी फासले बरकरार रखने की अपील कर दी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुलाकात की। इस मौके पर कोरोना वबा से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने जारी करदा SOPs पर मौसर अंदाज में अमल दरामद की हिदायत करते हुए चांद रात और ईद पर शहरियों से समाजी फासला बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, शहरियों को भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना का खात्मा कब होगा कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। ताहम कोरोना के खिलाफ जंग सब्र और तहम्मुल और दूर अंदेशी से लड़ रहे हैं। जिंदा कौमें आजमाइश में ही बेहतर रास्ते निकालती हैं। वज़ीर आला का कहना था कि ट्रांसपोर्ट और ट्रेन चलने से मुआशी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि वज़ीर आज़म की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उसूल पर मुकम्मल कायम है। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं रोका गया, जबकि हिलाल अहमद के चेयरमैन इब्रारुल हक ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान का अर्तुगरुल गाज़ी करार दे दिया है।
راوی روڈ پر راشن تقسیم کرنے کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ہمارے اچھے کاموں پر بھی تنقید کرتی ہے۔ گزشتہ 4 سالوں میں 22 ارب اور ہمارے دور میں صرف 3 ارب کی سبسڈی دی گئی۔ چینی انکوائری کمیشن میں جس کسی کا بھی نام تھا، عمران خان نے اس رپورٹ کو پبلک کرنے کا حکم دیا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے پوری انکوائری کروائی ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ دوست کون ہے، پارٹی کا کون ہے، کس جماعت سے کس کا تعلق ہے۔ اس کی رپورٹ، پھر جو بھی رپورٹ تھی اس کو ہو بہو پورے ڈاٹ اور کوما کے بغیر اس کو شائع کیا۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ جی اب تو فورینزک رپورٹ نہیں آئے گی، پھر فورینزک رپورٹ جو آئی ہے وہ بھی کی۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ ہم غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے کرونا کو سیریس نہیں لے رہے، جس کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن میں نرمی بھوک سے مرنے سے بچنے کے لیے کی۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں، کہیں ہم ٹاپ 10 میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو یہ میری فکر ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کورونا سے بچنے کے لیے اپنے اقدامات جو ہے ان کو ہر صورت جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہلال احمر کے چیئرمین ابرار الحق نے وزیر اعظم کو پاکستان کا ارطغرل غازی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے پوری دنیا میں پاکستان کی عزت بحال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کو اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی دے، وہ ہماری امید ہے۔ ہم مل کے وہ پاکستان بنائیں گے اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ گورنر پنجاب نے طیارہ حادثہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس جہاز کے کیپٹن سجاد گل اور ان کے بھائیوں کے ساتھ پرانے تعلقات تھے۔ کیمرہ مین علی نعمان کے ساتھ قذافی بٹ، سٹی 42۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی ہدایت پر فلاحی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے NA 124 میں راشن تقسیم کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ NA 124 میں تقریباً 10,000 سے زائد مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا جا چکا ہے، جبکہ مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ان کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راشن پیکٹ میں آٹا، دال، چینی اور چاول سمیت ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء شامل ہیں تاکہ مشکل حالات میں مستحق لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ تحفظ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ چیئرپرسن تحفظ فاؤنڈیشن عائشہ احد نے مستحقین میں راشن تقسیم کیا۔ عائشہ احد ملک کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن اور کاروباری بندش سے دہاڑی دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ تحفظ فاؤنڈیشن قومی ذمہ داری کے تحت مستحقین کی مدد کر رہی ہے، جبکہ طبی عملے کو لاکھوں کی مالیت کے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹس فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راشن بیگز میں 20 کلو آٹا، چینی، گھی، مسالہ جات، دال ماش، دال چنا، دال مسور، چنے اور چائے کی پتی شامل ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔